Hello, my name is Naman Shamsuka. I'm pursuing my ACCA based in Calcutta. Thank you. Thank you. Diptanshu. Hello everyone, my name is Diptanshu and I am studying Electronics and Telecommunication Engineering from KIT University. Okay, thank you. Aritra. Hello everyone, myself Aditya Mukherjee. I am from Kolkata and right now I am pursuing BBA in entrepreneurship from ILIT College. Thank you. Thank you. Ujjwal. Hello everyone, I am Ujjwal Singh and I am pursuing BCom University of Allahabad. Thank you. Thank you. Dibyanshu. Yeah, hello everyone. My name is Dibyanshu and I am studying in VIT Vellore, currently staying in Durgapur. Okay, thank you. So, my name is Vishal and the founder of Learning While Traveling. And we have this startup yesterdays, Monday to Friday, 10 p.m. to 10:30, plus minus, plus mostly plus 10, 10 15 minutes. Okay, so I think some of you did see the video of how we how KFC grew and how its founder went through so many hardships, etc. So so the question on the floor of पहला thing to discuss is कि कोई किसी को कब मीन मान लेना चाहिए कि अब ये चीज नहीं चलेगा अकॉर्डिंग टू यू अरित्रा व्हाट डू यू थिंक आई मीन व्हेन शुड वी गिव अप Well, what I can say is, for example, if you are trying to do a particular thing in a certain way, but it is not working, then instead of most people, what they do is they give up. Then instead of doing so, we must find another way of doing that particular thing. Maybe, for example, if you are trying to enter a pin into a wall, but behind that wall there is a metal, and that's why that pin is not entering. So instead of doing that, you can instead of giving up, you can just change the position of the pin and then trying to press it with the hammer, and then it may enter. So we must use okay smart work instead of giving up. so we should try to find another path to reach the same goal something like that Yeah. okay okay Naman what do you think when to give up and when not to give up should we give up or should we not give up In which sense? Like in in pursuing startup? a startup The thing is like it's a very tough question. Obviously, it's very easy to know, but it's a very have tough you question. ever given up on anything Yeah, I have given up. I have given up on many things, and and what was the decision process sequence the of events decision that process led was to like to to analyze all the factors, like what will happen. So if suppose you compare the advantages and disadvantages of the next step, so if you see, if your thinking process tells you that there are more disadvantages than advantages, and also on consulting with others you see that there are more disadvantages than advantages, so you should probably, I would not say give up, but I would say leave for that moment. So Mhm. it's like that. Okay, like put a halt at least. Yeah. ओके उज्जवल तुम्हें क्या लगता है क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए आई थिंक जैसा अरित्रा ने आई थिंक बोला था कि गिव अप नहीं करना चाहिए था चाहिए जस्ट चेंज योर स्ट्रेटजीज मतलब टाइम टू टाइम जब तुम्हें लग रहा है इट्स नॉट वर्किंग फिर दूसरी चीज मतलब उस काम को करने का तरीका चेंज कर लो तो आई थिंक इट विल हेल्पफुल मतलब अब एक चीज को बार बार मतलब वैसे ही करोगे तो आई थिंक कोई रिजल्ट नहीं आएगा फिर Yeah. ओके श्योर ओके दिव्यांशु व्हाट्स योर टेक ऑन दिस गिविंग अप नॉट गिविंग अप व्हेन टू गिव अप Yeah, so for me, it's like you should give up when you think that the returns or the advantages are being not being able to generate for a long period of time. So for that moment, I think that it should be okay to give up, but look for some alternative ways to
like generate some other revenues or some other incomes, if in case of startup, if you're thinking about. And in case of any other decision or some other situation, it may also like uh, give an impromptu to make the decision like to leave it early if there is there is no advantages coming on for a period of time, for a long period of time. So that's from my side. श्योर। अतुल सर, आपके हिसाब से गिव अप करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, कब करना चाहिए? तो गिव अप जो एंटरप्रेन्योर्स होते हैं उनमें एक खासियत ये होती है कि वो गिव अप नहीं करते हैं, लेकिन जैसा पहले भी इतना वकीलों ने बोला कि स्ट्रैटेजी चेंज कर सकते हैं, अपने ड्रीम्स को पोस्टपोन कर सकते हैं, कि जरूरी नहीं कि आज मैं स्कूल स्टूडेंट हूँ, कॉलेज स्टूडेंट हूँ तो आई कैन अफोर्ड टू डू वट एवर आई वॉन्ट अपने ड्रीम्स को, क्योंकि मेरे पास घर नहीं चलाना है, मुझे रेंट नहीं भरना है, किराया नहीं देना है, मतलब हर चीज पेरेंट्स सपोर्ट कर रहे हैं। बट वंस यू आर नॉट इन दैट स्टेज, और ज़्यादातर जो स्टार्टअप्स है, चाहे वो KFC वाले हों या बड़े बड़े जितने भी हुए हैं, तो उन लोगों ने अपने स्टार्टअप्स 40s 50s में, जो ज़्यादा सक्सेसफुल स्टार्टअप 50s वाले हुए, तो बाय दैट टाइम इफ यू ऑलरेडी सेव्ड एनफ मनी और एनफ एक्सपीरियंस कि इवन इफ आपका फेल भी होता है, देन यू कैन गो बैक इनटू रेगुलर अदर स्ट्रीम्स टू, घर चलाने के लिए आपके पास पैसा कमाने का तरीका है, तो यू कैन डू दैट। बट स्टूडेंट्स के पास कोई एक्सक्यूज नहीं है, स्टूडेंट्स कैन डू अ स्टार्टअप, keep failing, keep trying again, keep failing, keep trying, because they can afford to, तो कर देना चाहिए शुरू मेरे ख्याल से। श्योर। दीप्तांशु, तुम्हारा क्या ख्याल है? सो मेरे हिसाब से जो लगता है, जैसे अतुल सर ने बोला, एंटरप्रेन्योर्स कभी गिव अप नहीं करते, लेकिन उसका अगर देख रहा है कि अगर उसका कस्टमर नहीं ले रहा है, उसका प्रोडक्ट में फीडबैक ठीक ठाक से नहीं आ रहा है, तो उसका स्ट्रैटेजी एंड उसका प्रोडक्ट रिवीजन तो करना चाहिए। एंड जैसे काफी मतलब अगर वो, और एक चीज भी देखना होता है कि रिटर्न ऑफ मतलब जो टाइम इन्वेस्ट किया या जो मनी इन्वेस्ट किया उसके क्या रिटर्न आए। तो अगर देखें कि हम लोग एक बार तो कोशिश करना ही चाहिए, अगर कोशिश स्ट्रैटेजी चेंज करने के बाद भी अगर उसका सक्सेस नहीं हो रहा है, तो शायद कभी कभी हो सकता है कि तुमको और दूसरा कुछ ट्राई करना चाहिए। मतलब अगर नहीं हो रहा है तो यू शुड स्किप, ऐसा नहीं कि उसको लेके ही बार मतलब हर बार स्ट्रैटेजी चेंज करके ट्राई करना चाहिए। कभी ना कभी यू नीड टू गिव अप। आप जब देख रहे हैं कि नहीं 5 बार कर लिया उसके बाद भी नहीं हो रहा है, then you should skip and do something else, क्योंकि आपको मतलब और भी कुछ मतलब कुछ करना है, मतलब फैमिली को सपोर्ट करना है या कुछ करना है। तो बट स्टार्टिंग डेज में यू शुड ट्राई एटलीस्ट, अगर एक बार 2 बार फेल हो सकता है, लेकिन आपको ट्राई करना चाहिए। That's my Sure. viewpoint. Okay, Preeti, what's your take on this giving up attitude? तो मेरे ख्याल से गिव अप नहीं करना चाहिए, क्योंकि जब आप एक कंपनी खोल रहे हो तो ऑब्वियस सा बात है, आप एक स्टार्टअप कर रहे हो तो आपको कस्टमर मार्केट सर्वे आप भी आपको करते ही हो कि हम क्या मतलब कस्टमर का नीड्स है, वांट्स, उस हिसाब से आप अपना डिजाइन करते हो, अपना आइडिया को जनरेट करते हो। तो सर उस आइडिया पे हम काम अगर करेंगे, स्टार्टअप में होता है कि स्टार्टिंग में उतना प्रॉफिट ना हो या प्रॉफिट ही ना हो, बट सर अगर कुछ हमारा प्रोडक्ट में कुछ वैसा हो रहा है तो सब फीडबैक भी हम लोग को लेना चाहिए कि कैसा क्या हो रहा है। तो फीडबैक से भी बहुत चीज़ समझ में आती है कि किसमें हम लोग को ज़्यादा ध्यान देने का ज़रूरत है, क्या फोकस करने का ज़रूरत है, एक्चुअली में कस्टमर्स को क्या चाहिए। तो सर गिव अप इज़ नॉट अ सॉल्यूशन, बल्कि उसमें रिवीजन करके, स्ट्रैटेजी चेंज करके या कुछ भी करके मतलब ट्राई करना चाहिए। श्योर श्योर। गौरी, व्हाट डू यू थिंक? गिव अप करना चाहिए, नहीं करना चाहिए? स्टार्ट किया तो मतलब उसको लगे रहना चाहिए करने के लिए, करना है, या फिर कि छोड़ो यार, नहीं हो रहा तो दूसरा कुछ करते हैं या नहीं करते हैं, थोड़ा रेस्ट लिया जाए? क्या लगता है? have to unmute. Are you there? हेलो। हाँ हाँ, मैं कह रही हूँ कि सडनली गिव अप करने नहीं होता है, एंटरप्रेन्योर्स का क्वालिटी नहीं है मेरे हिसाब से। लाइक मैंने खुद भी 2-3 बार ट्राई किया है, उसके बाद हाँ मैंने गिव अप नहीं किया है, टेक अ पॉज, टेक अ ब्रेक, उसके बारे में अच्छे से विचार करके और फिर
फिर से शुरू कर सकते हैं। अगर वो एक चीज में फेलियर हो रहा है तो ज्यादा से ज्यादा लोगों से जो एंटरप्रेन्योर जो सक्सेस है, तो सक्सेस एंटरप्रेन्योर्स को देख के थोड़ा कॉपी पेस्ट वाला भी काम किया जा सकता है, थोड़े टाइम के लिए पॉज लेकर के, मेरे हिसाब से। श्योर। सो आई थिंक वी गॉट सम वेरिड व्यूज कि रास्ता बदलना चाहिए, स्ट्रेटजी चेंज करनी चाहिए, थोड़ा पॉज भी ले लेना चाहिए, और स्टूडेंट को तो आई मीन ट्राई करना ही चाहिए। सो कमिंग टू द KFC वाला कहानी, he got so many ups and downs in his life. शुरू में उसके फादर का डेथ हो गया, फिर बाद में उनकी शादी हुई, जॉब चली गई, पत्नी भी छोड़ के चली गई, फिर रेस्टोरेंट खोला उन्होंने, वो भी बंद हो गया, फिर ऑलमोस्ट 60-65 साल के एज में द थिंग स्टार्ट टू किक ऑफ। तो ये जो एक एज है, आई मीन जैसे कि आई थिंक न्यू जनरेशन का व्हाट आई सी, लाइक द वंस हु आर इन देयर टीन्स एंड 20s maybe, they probably tend to give up faster than the ones who are in 30s or 40s. Is this true, or is this I mean, what do you think about this, Naman? What do you think? I mean, do you think this is more of a trend, or it's just some anomalies? I do think that this is true, obviously, because when we are in 20s and I would say 19 and 20s, so we have a lot of things to explore, right? And in that period, our mind fluctuates, right? It fluctuates in a very high frequency. Suppose if you are doing this, then you will think, no, this is not for me. I will shift to another thing. Same thing happens with studies. In your grade 10 or in your grade 9, you think that you will become a doctor, you will become a businessman. But the reality, when you pass your grade 12, when you're in college, you think, no, this is not for me. Computer science is not for me. It was law that was for me, right? So this tendency of fluctuating and exploring different things is okay. It's not bad. It's okay in that age. You get to explore things, even though if you are tried doing a startup or any business, it will add to your experience. So you know what is startup, what is how do you connect with people, how do you sell something. So yeah, in that age. But when you are going to, you are becoming more senior in your life cycle. You suppose you are in your 30s or 40s, the people at that age tend to be more serious towards their career, towards their goals, because first of all, obviously you are matured enough, and second of all, you have to think about yourself, your family, and many other things in your life. So and the third thing is, in 30s and 40s, you know what to do. You know which is your line, which you can do, what work you can do, what work you cannot do, right? How you will divide your work, what's the best, how you can give your best. And that's the thinking process in 30s and 40s, right? So I think, Vishal, you will be more experienced, and you will be knowing more than me, and how to control people, how to manage people, right? So yeah, that's the thing I would say. The Sure, experience is sure. the key to success. करेक्ट करेक्ट। लेट्स हियर फ्रॉम अदर पीपल। उज्जवल, तुम्हें क्या लगता है, मतलब यंग लोग थोड़ा ज़्यादा गिव अप करते हैं कंपेयर टू अ बिट 30s 40s वाले, या वाइस वर्सा, और व्हाट डू यू थिंक? एग्जैक्टली सर, एग्जैक्टली। हाँ, आई थिंक सर एट द एज ऑफ 18 19 एंड टीनेजर्स, तो उसमें होता क्या है, मतलब डिस्ट्रैक्शन बहुत ज़्यादा होता है, और चीज़ें मतलब जैसे हम नमन ने भी बोला, बहुत चीज़ करने को होती है, और वी आर कंफ्यूजिंग कि हमें ये करना चाहिए, हमें ये नहीं करना चाहिए। लाइक कॉलेज में भी यही चीज़ होती है कि कुछ कई बार कुछ लोगों का होता है कि पीजी के लिए मैं प्रिपरेशन करूँ, या मैं खुद का अपना स्टार्टअप करूँ। तो लोग डिस्ट्रैक्ट होते रहते हैं। तो वो 2-2 कई बार 2 जैसे बोलते भी हैं, हिंदी में शायर भी है, शायरी मतलब क्या बोलते हैं उसको, मुहावरा भी है, 2 नाव पे नहीं चलना चाहिए। तो कुछ लोग 2 नाव पे चलने लगते हैं। इवन मैं खुद ही ऐसी हरकतें करता था, अभी तो मैं चेंज हो रहा हूँ थोड़ा। तो ये सब चीज़ें नहीं होनी चाहिए, और स्पेशली तभी आई थिंक मोस्ट प्रोबेबली 30 टू, जैसे अतुल सर ने बोला, 30 टू 40 के बाद लोग ज़्यादा सक्सेसफुल होते हैं। रीज़न यही है कि वो डिस्ट्रैक्ट नहीं होते हैं,
उनको पता होता है कि मुझे ये करना है, मेरी स्ट्रेंथ ये है, वीकनेस ये है, बट एट द एज ऑफ 20-19 वी डोंट नो कि अरे ये मेरे स्ट्रेंथ है, मुझे ऐसा करना चाहिए, मुझे वैसा करना चाहिए। आई थिंक लैक ऑफ एक्सपीरियंस भी बोल सकते हैं इसको। Sure. Okay. Divyanshu, what's your take on this? Age-wise, do you see any trend or you don't see? या सो जैसे कि मैंने अभी एक चीज नोटिस की थी कि एंटरप्रेन्योर एज मतलब एंटरप्रेन्योर सक्सेस जो होती है उसका एवरेज एज एक्चुअली 45 है, ना कि जो जो मतलब जो अर्ली टीन्स में जो लोग ने अपना फाउंड किया था, जैसे स्टीव जॉब्स ने एप्पल 21 में फाउंड किया, बिल गेट्स ने भी। तो उन लोग ने वो लोग थोड़े टिपिकल केस है, थोड़ा एक्सट्रीम केस है जिसमें उन लोगों ने अर्ली सक्सेस पाया। लेकिन एक्चुअली अगर देखा जाए तो एवरेज एज 45 के अराउंड ही रहता है। और मेन रीजंस ये हो सकता है कि एक तो टीनेजर्स में पेशेंस की कमी बहुत है, उनको एक मतलब एक फोकस्ड विजन का प्रॉब्लम है, उनको फोकस्ड विजन नहीं रहता सिंपली। सो ये वन ऑफ द रीजंस हो सकता है कि बहुत सारे स्टार्टअप्स जो टीनेजर्स स्टार्ट करते हैं वो लोग जल्दी मतलब सक्सेस नहीं मिलता, फास्ट सक्सेस नहीं मिलता बोल के वो लोग जल्दी अपने आप प्लान्स को डिसरप्ट कर लेते हैं। लेकिन जैसे मैच्योरिटी आती है 30s 40s में, तो वो एक मतलब पेशेंस रहती है, एक मैच्योरिटी के साथ पेशेंस भी ग्रो हो जाती है। तो उन लोग वेट कर सकते हैं कि हाँ ये अभी ये ऐसा स्टेप्स चल रहा है तो हम और इसको आगे बढ़ा सकते हैं, तो ये मैच्योरिटी के साथ आती है। तो यही मेन रीजंस मुझे लगता है कि जो स्टार्टअप्स के ये हो। Sure, sure. So, Aritra, you are doing BBA in entrepreneurship. So, is it like, do you also feel fluctuating at times, or you are a bit more clearer No, and? no, I am determined. I am determined. Mhm. And do you see, I mean, a lot of people your age not following that determination, or Yeah, what do you that think? is I mean, true. A lot of people are not determined or focused on their career. Sometimes after pursuing a particular course, they think that no, this was for me, this is not for me. They have a fluctuating mind. But according to the question that you asked, that whether the people in their 20s give up or the people in their 40s give up, according to my personal opinion, I think the people in their 40s would give up more easily, because you see, when you reach the age of 40, you have a lot of responsibility. You have family to take care of, you have a wife to take care of, you maybe have a kid to take care of. So during that age, if you take a risk, then your family members would endure that risk too. So in that case, it becomes more of a burden. But in your 20s, you have nothing to lose. I can say you have nothing to lose. You don't have any responsibility. You can explore new things. You can do whatever you want. So I think when people reach 40, in their age of 40s or 30s, they become more realistic. I mean, by realistic, I mean they accept that this is life. I hate my job. I don't like my job, but I have to do it. I have no other choice because I have a family to support. So when you become too much realistic, you can't follow your dreams. You have to give up on your dreams. So I think people in their 20s have higher chance of attaining success. नहीं वो तो है. I Particularly if think they're it's a kind of planning to build a a startup. contradictory thing. When you can probably take more risk, people have more fluctuating mind. So क्या हो जाता है कि because of that fluctuating mind, वो risk ability तो बहुत है, but because fluctuation की वजह से वो risk ability भी fluctuate करता रहता है या बहुत सारे जगह distribute हो जाता है. So individual focus on a risk, is reduced as an average probably. I mean, overall total risk factor is way more maybe compared to like a 30s or 40s, but thoda sa distraction की वजह से it gets distributed into many things probably. So anyway, Gauri, what do you think, I mean, about this age factor? Is there any correlation? आपको क्या लगता है? अतुल सर बताइए, आप पहले आप बताइए आपका क्या राय है इस बारे में, थोड़ा सा सुन के सबका बात. तो मैं सॉरी क्वेश्चन नहीं मिल गया, मैं कुछ और देख रहा था, सॉरी. नहीं तो क्वेश्चन ये है कि अर्ली 20s, आई मीन टीन्स 20s वर्सेस 30s 40s, आई मीन देयर इज प्रोबब्ली अ ट्रेंड ऑफ fluctuating people in their young age when they could actually take more risk and there is more stability, या जो भी है मतलब ना रिस्क थोड़ा कम ही लेते हैं बट एटलीस्ट मे बी फोकस्ड रिस्क लेते हैं. तो डू यू एग्री टू दिस ट्रेंड?
तो बेसिकली अर्ली एज में लोग रिस्क ज्यादा लेते हैं और 30s 40s में रिस्क कम लेते हैं, राइट? बट अर्ली एज में वो रिस्क को बहुत ज्यादा डाइल्यूट भी कर देते हैं, मतलब बहुत जगह रिस्क ले लेते हैं। हाँ, तो मतलब कोई कि एक बहुत ही फोकस चीज, डिस्ट्रैक्टेड होते मतलब हैं, बिकॉज ऑफ हाँ, एक साथ फ्लक्चुएटेड माइंड मे बी, फोकस नहीं सो दे होता है। टेंड टू गिव अप मोर। हाँ तो दैट्स द बेस्ट थिंग अबाउट बीइंग यंग, कि आप जो चाहो ट्राई कर सकते हो, एक्सपेरिमेंट कर सकते हो लाइफ में, कोई फिक्स्ड पाथ नहीं बना हुआ है, क्योंकि अर्ली एज में एंड आई थिंक दैट इज द राइट टाइम टू डू ऑल दोस थिंग्स, कि आप जब यंग एज में हो, आप पे कोई पारिवारिक सामाजिक कोई जिम्मेवारी नहीं है, तो दे शुड ट्राई आउट एवरीथिंग दे कैन। जितना ज़्यादा ट्राई करेगा उतना ज़्यादा सीखेगा, फेल होगा लेकिन सीखेगा कम से कम। बट एक बार जब आप 30s 40s में आ जाते हैं तो आपकी रिस्क एपेटाइट एकदम घट जाती है, धीरे धीरे जीरो के टुवर्ड टेंड कर जाती है। शादी हो गई, फिर बच्चे हो गए, तो फिर तो ऑलमोस्ट जीरो हो जाता है, क्योंकि आपको बच्चे के फ्यूचर के बारे में सोचना पड़ता है कि अच्छा बच्चे का पढ़ाई कैसे होगा, फिर उसका क्या होगा। तो प्री मैरिज इज द बेस्ट टाइम टू डू अ स्टार्टअप, या आफ्टर मैरिज टू, बट अगर आपके जो पार्टनर है, हस्बैंड वाइफ, किसी एक का स्टडी जॉब या इनकम है, तो दूसरा पार्टनर रिस्क ले सकता है, क्योंकि एक तरफ से सिक्योरिटी कवर्ड है, आपको खाने पीने के लिए या घर पे छत के लिए सोचना नहीं पड़ेगा। तो अलग अलग स्टेजेस में लाइफ के अलग अलग प्रोज एंड कॉन्स हैं, कि 30s 40s में बहुत ज़्यादा कुछ लोगों के पास आजकल तो जो स्टार्टअप का जो स्टार्ट करने का जो कॉस्ट है और टाइम है, वो बहुत कम हो गया है। तो आजकल तो जस्टिन बीबर ने स्कूल में पढ़ते-पढ़ते वीडियो बनाया, उसकी मम्मी ने वीडियो रिकॉर्ड किया, वो सेलिब्रिटी बन गया। तो आजकल आसान हो गया है, कोई स्कूल एज में भी बहुत बड़ा सेलिब्रिटी बन सकता है। जैसे आपने ही स्टार्ट किया था लर्निंग व्हाइल ट्रैवलिंग का, लर्निंग व्हाइल ट्रैवलिंग किड्स। तो आपका बेटा फर्स्ट एंटरप्रेन्योर, यंगेस्ट एंटरप्रेन्योर हो गया। तो वही वाली सिचुएशन है कि अर्ली एज में ज़्यादा रिस्क एपेटाइट है, ज़्यादा पॉसिबिलिटीज़ है, और जैसे-जैसे आपका एज बढ़ते जाता है तो आपका रिस्क एपेटाइट घटते जाता है। लेकिन सक्सेस के चांसेस भी थोड़े बढ़ते जाते हैं, क्यों? क्योंकि आपके पास ज़्यादा एक्सपीरियंस है और आपके पास ज़्यादा सपोर्ट सिस्टम है, कि जैसे कि आज मैं अपने इस ग्रुप से एक एग्जांपल लेता हूँ, नमन का। अब नमन कॉलेज में चला गया है, दुनिया का ज़्यादा एक्सपीरियंस है, घूम चुका है, और आपके लर्निंग व्हाइल ट्रैवलिंग के थ्रू ही बहुत सारे लोग जिन्होंने दुनिया घूमा, तो दैट टाइप ऑफ एक्सपीरियंस दे हैव, दैट्स वेरी इनवैल्यूएबल, जो किसी यूनिवर्सिटी में नहीं मिलेगा। श्योर। दिव्यांशु, या यू वांट टू से समथिंग प्लीज? या सो जो अभी तक जितना पॉइंट डिस्कस हुआ, तो उसमें मेन मुझे एक लगता है कि जो स्टार्टअप्स का जो आइडिया, जो राइट टाइम होता है ना सक्सेस पाने के लिए, वो भी एक फैक्टर हो सकता है। जैसे कि अगर हम मार्क जुकरबर्ग या स्टीव जॉब्स को देखें, वो लोग पहले से ही अच्छे नहीं थे, ये 19 ईयर्स में या 21 ईयर्स में पहले से ही मतलब बहुत पीक में नहीं आ गए थे वो लोग। उन लोग को भी बहुत सारे जॉब्स करने पड़े अपने कंपनी में, डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ जॉब्स। लेकिन उनका जो आइडिया था स्टार्टअप का, वो एक राइट टाइम में आया था, तो उनके लिए वो एक सक्सेस पैटर्न फिक्स हो गया था, क्रिएट हो गया था उस समय जब वो यंग थे। लेकिन अब वही चीज अगर आप मैच्योरिटी में देखें 30s एंड 40s में, तो एक आइडेंटिफिकेशन की कब राइट टाइम है, तो वो मैच्योरिटी के साथ बढ़ जाती है जब एज बढ़ती है। तो ये एक पॉइंट है कि जो स्टार्टअप सक्सेसफुल स्टार्टअप्स के लिए काम आती है जब एज बढ़ जाती है। Sure. Let's hear from Gauri. What do you think, Gauri? I mean, age-wise, risk-taking ability का correlation आपके हिसाब से क्या है? Hello, are you there? I think some network issue probably. Okay, let me ask another last question for today. तो ये जो एज के साथ कोरिलेशन है रिस्क टेकिंग या टू मच फ्लक्चुएशन का, सो डू यू थिंक कि ये जो फ्लक्चुएशन होता रहता है, आई मीन बिकॉज ऑफ दिस टू मेनी ऑप्शंस और टेंडेंसी टू ट्राई टू मेनी ऑप्शंस, मतलब ऐसा कुछ है कि आपके पास लेट्स से कॉलेज के 4 साल 3 साल जो भी हैं, आप कुछ ट्राई कर सकते हैं, यू कैन डेफिनेटली ट्राई, बट हाउ मेनी थिंग्स टू ट्राई इज द क्वेश्चन। 1 2 10 20 कितने चीज ट्राई करना चाहिए? नमन, व्हाट डू यू थिंक? गौरी, व्हाट डू यू थिंक? आर यू अब एबल टू हियर द क्वेश्चन? uh, या ओके, नमन प्लीज गो अहेड। या सो मेरा ये बोलना है कि अब ट्राई तो आप बहुत कुछ कर सकते हो, इन्फिनिटी है,
ट्राई करने के बेसिस हाँ पे। मतलब बट हाँ एक कुछ बॉलपार्क नंबर तुम्हारे यहाँ हिसाब एक से? बाउंड्री होती है, हर आदमी के अंदर एक बाउंड्री होती है, और आप ऐसे डिवाइड कर सकते हो कि बाउंड्री के बाहर यू डोंट लाइक टू डू दैट, और वो बाउंड्री के अंदर यू इंटेंड टू डू दैट, यू लाइक टू डू दैट, और यू वांट टू डू दैट। इच्छा। तो मैं ये बोलूंगा, आपको अंदर से ही सेंस में पता चल जाता है कि यार कि मेरे को करना चाहिए नहीं करना चाहिए। अगर आप जाओगे, आपको अगर कोई म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट सीखना है, आई वांट टू लर्न एन म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, सो मैं देखूंगा कि मेरे को कौन सा अच्छा लगता है। सपोज आई वांट टू लर्न गिटार, राइट? सो मेरे मन में एक इच्छा आ जाती है, चलो मैं गिटार सीखता हूँ या फिर ट्राई करता हूँ कि सीखने का। इफ आई डोंट लाइक, आई कैन गिव अप और आई कैन होल्ड दैट। सो ऐसा चीज रहता है एक्सप्लोरेशन का, कि अगर मेरे को नहीं समझ में आया, सो आई विल नॉट कंटिन्यू विद दैट थिंग, राइट? सो यही चीज सेम बहुत जन अलग अलग, जैसे स्टडीज में भी आजकल बहुत जन ऐसे करने लगे, क्योंकि ऑब्वियसली इंडिया में भी आजकल बहुत फ्लेक्सिबिलिटी आ रही है। सो मैंने भी बहुत जन को देखा है कि लाइक बहुत जन ट्रांसफर ले लेते हैं कि मेरे को ये पसंद नहीं आया, मेरे को आज सपोज मैं बीकॉम कर रहा था, अब मेरे को बीकॉम अच्छा नहीं लगा, मेरे को इंग्लिश पढ़ना था, मेरे को आर्ट्स लेके पढ़ना था, तो उन लोग ट्रांसफर ले लेते हैं इंग्लिश पढ़ने के लिए, इंग्लिश ऑनर्स करने के लिए। सो वही होता है कि अगर आप ट्राई आउट करो, आपको अच्छा नहीं लगता है, इट्स ओके, यू कैन लीव दैट थिंग, यू कैन डू द नेक्स्ट थिंग यू वांट टू डू, राइट? सो ये एक्सप्लोरेशन का प्रोसेस है। श्योर। उज्जवल, तुम्हें क्या लगता है कितने सारी चीज ट्राई कर सकते हो अपने लेट्स से 20s तक या टीन्स में? हाँ बोलो उज्जवल, आने दे। आई थिंक जितना ज्यादा एक्सप्लोर कर पाओ उतना ज्यादा बेटर है। आई थिंक इस चीज में ये एक्चुअली यही क्वेश्चन है, ये जो जितना ज्यादा तुमने बोल दिया ना, अब वो जितना ज्यादा किसी के लिए 100 हो सकता है, 1000 हो सकता है, लाख हो सकता है, 10 हो वो भी सकता है, है। पता चला ऐसा कि हर दिन एक नया चीज ट्राई किया वो भी ए से प्रॉब्लम है। जेड तक आप लिखना था, ए से बी तक भी नहीं पहुंचे और दूसरे लैंग्वेज में पहुंच गए। तो बट इसमें एक ट्रेड ऑफ है। हाँ, बट ट्राई लेना चाहिए। लाइक जैसे सुशांत सिंह राजपूत ने लिया था, लाइक उसको बहुत अच्छा कॉलेज मिला था, AI ट्रिपल या IIT से, आई थिंक जो भी था, तो उन्होंने ड्रॉप ले लिया था सेकेंड ईयर के बाद वो रॉक स्टार बनी डीसी में था, दिल्ली कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग। हाँ, बहुत वन ऑफ द बेस्ट कॉलेज आई थिंक इंजीनियरिंग का। तो उन्होंने ड्रॉप लिया था। आयुष्मान खुराना जो थे, उन्होंने डेंटिस्ट क्लियर किया हुआ था, तो उन्होंने छोड़ के उन्होंने बॉलीवुड और पहले उन्होंने बॉलीवुड में तो आए भी नहीं थे, वो जस्ट नॉर्मल सा वो करते थे, FM रेडियो में थे। तो अगर आपको सच में वो चीज करना है तो सही, आपको लग भी रहा है मेरे पास एक्सपीरियंस भी है, मैं ये कर सकता हूँ, तो ले लेना चाहिए। थोड़ा सा भी डाउट होता है ना कि यार नहीं हो पाएगा, ऐसे कैसे होगा, और मतलब कुछ लोग होते नहीं है ना, मतलब कि कंफर्ट जोन चाहते हैं, तो किसी के अंदर वो है तो आई थिंक उनको बहुत ज्यादा रिस्क नहीं लेना चाहिए, बढ़िया सरकारी गवर्नमेंट जॉब करना चाहिए उनको। बट जिन्हें थोड़ा सा एक्सप्लोर वगैरह करने का शौक है, थोड़े बहुत रिस्क ले सकता है, थोड़े बहुत क्या, आई थिंक बहुत से रिस्क ले सकता है, हम जितनी उसकी कैपेबिलिटी है। तो या श्योर। अतुल सर, आपको बट क्या इतना लगता भी है रिस्क कि नहीं लेना चाहिए। हाँ नहीं, सो अतुल सर, आपको क्या मतलब लगता है कितने सारे चीज ट्राई कर सकता है कोई एक इंसान? मतलब जिंदगी ना मिलेगी दोबारा भी, तो एक एंगल है, तो बिल्कुल। बहुत ज्यादा ट्राई और करने में बर्बाद ना हो जाए कोई। नहीं, एलॉन मस्क ने दिखा दिया है कि एक साथ आप एक नहीं 5 इंडस्ट्री को डिस्टर्ब कर सकते हो। बट 5 स्पेस ही में भी दिखाया आप ना, 50 नहीं दिखाया। हाँ? 5 ही हाँ, दिखाया, लेकिन 50 नहीं 5 दिखाया। बहुत बड़ी-बड़ी कहीं ना चीजें हैं ना कहीं कि तो पूरे एक लाइन है ना। नहीं, तो उसमें यही है ना कि थोड़ा-सा अपने ईगो को भी कंट्रोल करना चाहिए कि आप एलॉन मस्क नहीं हो। हो सकते हो, लेकिन अभी तक आपने साबित नहीं किया कि आप एलॉन मस्क के लायक के टाइप हो, या आप बिल गेट्स या जो भी हो। तो सपना देखना, अपने आप को अंबानी समझना अच्छी बात है, बिल गेट्स, अंबानी जो समझना समझ, लेकिन रियलिटी चेक भी बहुत ज़रूरी होता है कि मैंने कुछ स्टार्ट किया और नहीं चला, तो फिर उसके बाद उसमें से एक सेल्फ इवैल्यूएशन होते रहना चाहिए, मैं स्टूडेंट्स के लिए भी, कि मैंने मान लें कि IIT JEE का एग्ज़ाम दिया, नहीं हुआ, कोई बात नहीं,
फिर मैंने लोकल किसी इंजीनियरिंग कॉलेज का ट्राई किया, डीसी या किसी भी अच्छे कॉलेज में, तो हो गया। तो अपने ईगो को थोड़ा सा लगाम में रखना चाहिए। फेलियर्स का एक बहुत बड़ा रोल ये भी होता है, बिसाइड्स सिखाने के, कि हमारे ईगो को कंट्रोल में रखते हैं कि आप एलॉन मस्क नहीं हो। बन जाओगे तो आप एलॉन मस्क की तरह जाके कीनोट स्पीच पूरी दुनिया भर में दीजिए, बट जब तक नहीं है तो आप थोड़ा सा अपने एरोगेंस को या ईगो को थोड़ा लगाम में रखिए, और मेक श्योर कि आप पढ़ाई लिखाई भी, बाकी सारी जो चीजें हैं जो वो भी अपने पेरेंट्स बोल रहे हैं कि पढ़ लो तो पढ़े लीजिए, एग्जाम कर लें ताकि काम आएगा बाद में। वो क्योंकि वापस नहीं आएगा, जिंदगी ना मिले दोबारा एंजॉय करने के लिए तो लागे ही हैं, बट साथ में ये भी एक एग्जाम्पल है कि साथ में आपको एग्जाम नहीं क्लियर कीजिएगा 12th का या 10th का, तो बाद में फिर आपको हो सकता है कि दोबारा मेहनत करने पड़े। बहुत सारे लोगों का एग्जाम्पल है ना, किसी लोगों ने 100 साल की उम्र में उन्होंने फिर से एग्जाम देना पड़ा, क्योंकि उनको इनको पॉलिटिकल लीडर है हमारी, क्या नाम है, स्मृति ईरानी को, या बहुत सारे लोगों को बाद में प्रॉब्लम हुई ना कि उनको ठीक से उन्होंने ग्रेजुएशन नहीं पास किया था या 12th नहीं किया था, तो दोबारा उनको फिर से लेना पड़ा एग्जाम, पढ़ाई। तो वो चीज सोचना चाहिए कि हर रिस्क का एक कॉस्ट भी आता है साथ में। तो आर यू विलिंग टू बियर द कॉस्ट, देन ओके, नो प्रॉब्लम। बट बहुत सारे लोगों को कॉस्ट के बारे में पता नहीं है। मोस्ट ऑफ द टाइम वी ओनली नो द अपसाइड ऑफ इट, कि अगर सक्सेस हो गए तो हम ये हो गए, वो हो गए, हम वहाँ पे टेड पे भाषण दे रहे हैं और दुनिया में हम फेमस हो गए। अभी आजकल मीडिया बहुत आसान हो गया ना, तो हर आदमी छोटा मोटा भी कुछ करेगा, किसी गांव में भी करेगा और उसका थोड़ा सक्सेस हो गया तो पूरा न्यूज़पेपर्स में और तो नहीं, कम से कम इंटरनेट पे तो छा ही जाएगा। लेकिन ये देख लीजिए कि आपको जस्ट वो टेम्पररी फेम चाहिए, यू वांट समथिंग बिगर एंड लॉन्ग टर्म सक्सेस चाहिए। करेक्ट। तो और मैं आई इसको थिंक सर एक हाँ, और बोलो चीज जो। है सर, आई थिंक सर लोगों को थोड़ा डेटा पे भी ज्यादा ध्यान देना चाहिए। मतलब अब लाइक एलन मस्क की देखो जैसे डेटा का हाँ मैं बता देता हूँ। आई थिंक आई वाज ट्राइंग टू से दिस ओनली एट द एंड। देयर इज समथिंग कॉल्ड सर्वाइवरशिप बायस। इसका मतलब क्या है? सो सर्वाइवरशिप बायस का मतलब है कि अगर एक शिप है, उसमें 100 लोग थे और जहाज डूब गया, उसमें से 5 लोग बच गए या 10 लोग बच गए, तो ये 10 लोग जो कहानी सुनाएंगे वो कहानी ही सच है, क्योंकि बाकी सारे लोग तो डूब गए। तो अब क्या हो जाता है कि ये जो स्टार्टअप न्यूज़ या बहुत सारा स्टोरीज आता है, these are the people who survived that sinking ship। ठीक है, अब हमने वो बाकी 90 लोग का तो कहानी सुना ही नहीं, क्योंकि वो तो उनका कहानी कभी सुनेंगे भी नहीं शायद। आई मीन अनलेस यू आर क्लोज टू वन ऑफ देम और समथिंग, प्रोबब्ली यू नेवर हियर। ठीक है, तो हमेशा ये एक फैक्टर आपको ध्यान में रखना बहुत ज़रूरी है कि आप जो न्यूज़ सुन रहे हैं, देयर माइट बी अदर साइड ऑफ द सेम स्टोरी। हमें दिखता है सक्सेस दिखता है ना, इट्स वन साइड ऑफ द कॉइन रादर। अतुल सर, डू यू एग्री विद दिस सर्वाइवरशिप बायस? I completely agree with this survivorship bias theory। ये टर्म मैंने सुना नहीं था, बट गुड टू हियर दैट, कि हम लोग केवल सक्सेस स्टोरीज को ही सुनकर समझ लेते हैं कि ऑल इज हंकी डोरी, मतलब कि सब कुछ ऑल इज द स्काई इज ब्लू एंड दिस एंड दैट, अच्छी अच्छी हम लोग कहानियां सुन लेते हैं। लेकिन उनके जो फेलियर्स वाली कहानियां तो आती ही नहीं है, न मीडिया में आती हैं। और बहुत सारे सुपर स्मार्ट लोग, टैलेंटेड जीनियस लोग, कुछ लोग पागल हैं, मतलब पागल इन द सेंस एक्चुअली पागल हैं, नोबेल प्राइज विनर टाइप लोग भी। क्या नाम है, आपको याद है वो बंदा जॉन जो नैश, प्रिंसटन में, भूल जाता था। हाँ जॉन नैश। तो जॉन नैश टाइप के भी बहुत कुछ लोग तो बहुत बड़ा था, तो आज भी उसकी उसमें किताब फिल्में बन गई। बट देयर आर मिलियंस ऑफ पीपल जो कि स्टार्टअप करने के चक्कर में उन्होंने अपना करियर सैक्रिफाइस किया, फैमिली सैक्रिफाइस किया, एंड द एंड ऑफ इट दे अचीव नथिंग। कुछ लोगों ने सुसाइड भी कर लिया। सुसाइड भी बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। तो उस स्टोरीज को हम लोग कम चर्चा करते हैं, एंड आई थिंक वी शुड टॉक अबाउट दोस, कि पीपल who tried, who were very smart and this and that, but they failed, and वो failures पे भी डिस्कस करना चाहिए मेरे हिसाब से। करेक्ट है, बहुत अच्छा पॉइंट है। अगर if anyone finds anyone who want to share a failure story or maybe a mediocre story, feel free to refer to us and we would be happy to feature them, या at least give them due credit on our Friday night or any other night also। I mean जिस दिन भी आ सके वो। आई थिंक ये एक अच्छा चीज़ हम लोग अपना 10 PM
केस स्टडी में कर सकते हैं अगर हमें वो लोग मिल जाते हैं कहीं से भी जो अपनी फेलियर के भी थोड़ा शेयर करें कैसे कैसे फेल हो गए, क्या क्या लेसन लिया, क्या क्या चीज़ें उनके हिसाब से नहीं करनी चाहिए एटलीस्ट, सो दैट वी गेट दैट सिंकिंग शिप में जो 90 लोग डूब गए उनका भी एक बुक पढ़ने को मिले एटलीस्ट। ठीक है, उनको भी कुछ डॉक्यूमेंट किया जाए, उनको सर फेलियर सैल्यूट किया जाए। हाँ बताओ। तो विशाल जी बहुत सारे लोग तो डूब गए तो कहानी सुनाने के लिए आपको मिलेंगे ही नहीं। तो उनके फ्रेंड जो है ना, शिप वाले जो लोग बच गए, उनसे पूछ सकते हैं कि कौन कौन से उनके जो फ्रेंड्स थे और डूब गए, मतलब कि उन्होंने डूबते हुए देखा, तो उनकी जो पेन और उनके जो एक्सपीरियंसेस को जो लोग बच गए और जिन्होंने देखा वो दे कैन मे बी टॉक अबाउट इट। Sure. I mean, whichever way we can find their stories. Chalo, okay. So I think great discussion. It's good to food for thought hai, and I think we'll discuss all these points in with respect to other case studies also. So thank you everyone. Tomorrow we'll have the startup night out, and I have invited one of my friend who's starting a startup to present his idea, and it's on matrimonial something. So see you guys tomorrow. Bye. Okay, bye bye, good day.